So starting from where we have left in the last class, we were discussing about the ions. Now what are ions? You have to define ions as they are electrically charged atoms or group of atoms formed by losing or gaining electrons. Electrons are gained or electron are lost depending upon the configuration, electronic configuration, and then the ions are formed. Okay. Now molecule of a compound is usually made up of two parts. You must have seen when we write the name. First one is a name and then second one is a name. Now first one is sodium and another one is chloride. This sodium has come from this sodium and this chloride has come from chlorine. तो जो बाद वाला है उसका नाम चेंज हो जाता है, वो बन जाता है जैसे क्लोरीन बन जाएगा, IDE लग जाता है उसके लास्ट में, ठीक है. तो क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, सल्फर बन जाएगा सल्फाइड, ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्साइड. तो इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, बट फर्स्ट वाले का जो नाम है वो सेम रहेगा. ओके. सो दिस मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. अब देखेंगे कि सोडियम आयन कैसा है. सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोराइड आयन कैसा है, वो नेगेटिवली चार्ज है. कैसे पता चलेगा कि वो जो आयन्स हैं वो कैसे हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपको याद करने पड़ेंगे. देयर इज अ टेबल ऑफ radicals with their valency you have to learn. Then only we can make the formula. I've already asked you many times that you have to learn the formula. So see, this is sodium, it is written like this. Then this is chlorine, this is negatively charged, this is positively charged, and when they combine together, their positive and negative charge get cancelled and they form a compound which is NaCl. How this charge comes on them? This charge is actually nothing there, it is their valency. That means if sodium has got one positive charge, that means it has got valency 1. Chlorine has got one negative charge, so it has got valency 1. For example, magnesium. Magnesium has got 2 positive charge, then it has got valency 2. Oxygen has got 2 negative charge, that means it has got valency as 2. So the charge on these radicals show their combining capacity, that is valency. You will study about valency and how to take out how ions are formed in next class. So right now what you have to do, you have to learn this table. This table is very very important. So hydrogen has got +1, दैट मीन्स वैलेंसी 1. तो जितने के ऊपर भी एक चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, उनकी सबकी वैलेंसी 1. जिनके ऊपर 2 चार्ज है उनकी वैलेंसी 2. जिनके ऊपर 3 चार्ज है उनकी वैलेंसी 3. जिनके ऊपर 4 चार्ज है उनकी वैलेंसी 4. ठीक है. तो ये आपको याद करने हैं. पॉजिटिव नेगेटिव में भी सेम है. अगर देखिए एक नेगेटिव है तो इट हैज़ गॉट वैलेंसी एज 1. ये देखेंगे सारी, ये बहुत ज़रूरी है ये सारे टेबल याद करने, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये आपको, क्योंकि इन्हीं से हम फॉर्मूला बनाएंगे. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग अप टू द डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स, molecules and radicals. So 3 things are there. So we need to find out the difference. First one is, an atom is the smallest particle which may or may not have independent existence. This I have already explained you. A molecule is the smallest particle of an element or a compound capable of independent existence. It can be made up of more than one atom of same or different type. But then what is a radical? It is a single atom of an element or a group of atom. Single atom का भी हो सकता है और group of atom का भी हो सकता है, but it behaves as a single unit with positive or negative charge on it. तो radical में charge होना बहुत जरूरी है. अगर charge है तभी वो radical है. An atom represent all the properties of that element, and molecules also represent all the property of that element or a compound. But oppositely charged radical combine to form मॉलिक्यूल्स. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था सोडियम और क्लोरीन का. सोडियम पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है. दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. एग्जाम्पल्स देख लेंगे हमारे एटम्स के. सोडियम का एटम, क्लोरीन का एटम, दीज रिप्रेजेंट सिंगल एटम.
Now this is one molecule of water, this is one molecule of carbon dioxide, this is one molecule of hydrogen, this is one molecule of oxygen. But examples of radicals, Cl negative, NH4 positive, SO4 2 negative, sulfate ions, तो ये सारे हमारे radicals हैं. Now see, NH4 plus, that is ammonium ion, and chloride ion are oppositely charged, which can combine to form a compound known as ammonium chloride. कैसे बनेगा ये ammonium chloride? This I am going to explain you. अभी जो हम criss cross करेंगे formula बनाएंगे. Before that, let's see. So let's see the definition of valency. Valency is the combining capacity of an element or a radical. चाहे वो एलिमेंट हो चाहे रेडिकल हो, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं. नाउ वन मोर डेफिनेशन यू हैव, it is the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that element or radical. Let's see the example कि हाइड्रोजन के केस में कैसे हम उसको लर्न करेंगे. सी, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो यानी जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले प्लेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सेकेंड प्लेस पे नेगेटिव चार्ज आयन आता है, रेडिकल आता है. तो पहले प्लेस पे H आएगा. चूँकि H की एक H जो है उसकी वैलेंसी 1 है, और अगर उसके साथ मान लीजिए लग गया हमारा क्लोरीन, ओके, एंड देन फार्मूला बिकम्स HCl. तो सबसे पहले तो हम इसको समझने के लिए लेट्स सी हाउ वी डू द क्रिस क्रॉस मेथड. पहले हम क्रिस क्रॉस मेथड समझेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, यू विल राइट, क्लोरीन के नीचे लिखेंगे. क्लोरीन की वैलेंसी 1 हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे. ठीक है. और अब जब इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले की तरह लिखेंगे तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट H के नीचे जो वैलेंसी आई है उसको H के साथ लिख दो, और Cl के नीचे जो वैलेंसी आई है उसको Cl के साथ. नाउ दिस 1 and 1 बीइंग कॉमन, हम इसको काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट द फॉर्मूला HCl. ओके, सो दिस बिकम्स फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, चलो दूसरा देखते हैं. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस क्रॉस. अभी हाइड्रोजन के ही उसमें देखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे आपको सिर्फ सिंबल लिखने हैं. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के नीचे, और जो मैंने अभी समझाया आपको कि जिसके वैलेंसी जिसके नीचे है वो नंबर उसके साथ लिख देंगे. ठीक है, तो H के नीचे 2 लिख देंगे और O के नीचे 1 लिख देंगे. अभी कैंसिल तो होगा नहीं, है ना, तो 1, लेकिन हम लिखते नहीं है रूल में, 1 को ओमिट कर सकते हैं. वी कैन ओमिट, वी डोंट राइट 1. सो द फॉर्मूला बिकम्स H2O. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. कैसे क्रिस क्रॉस से बना आपको समझ में आ गया है. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड वर्ड क्लोरीन से आया, उसका सिंबल Cl. सोडियम की वैलेंसी 1 क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 सोडियम के नीचे. ठीक है, और अब इसको हम स्टडी करेंगे इस तरीके से. जो Na के नीचे लिखा है उसको Na के साथ, जो क्लोरीन के साथ लिखा है उसको क्लोरीन के साथ. 1 से 1 कैंसिल, एंड द फॉर्मूला बिकम्स NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, ओके. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं. लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन का सिंबल Cl. नाउ मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 मैग्नीशियम के नीचे. ओके, नाउ विल स्टडी इट लाइक दिस. Mg के नीचे 1 और क्लोरीन के नीचे 2. 1 लिखते नहीं, ओमिट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बिकम्स MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. तो अभी क्या समझ में आया इस, अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए उसमें आपको एक अच्छे समझ में आई होगी कि क्रिस क्रॉस का मतलब है वैलेंसी एक्सचेंज करना.
सो वट एवर वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज देयर इट इज़ रिटन ऑन क्लोरीन। देखेंगे क्लोरीन के ऊपर 2 है, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी है। वट एवर इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज रिटन ऑन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 यानी मैग्नीशियम के नीचे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसी को उठा के दूसरे के ऊपर रख दे रहे हैं। तो दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस फार्मूला मेकिंग। वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, जितने भी बुक में आपके एग्जाम्पल हैं मैं सब एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, क्लोराइड में क्लोरीन है तो Cl आ गया। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो आपने इसको लिख दिया क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है कि 1 है, तो वो आपने लिख दी कैल्शियम के नीचे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, Ca के नीचे 1 और क्लोरीन के नीचे 2 लिखने के बाद, तो Ca1 एंड Cl2। 1 we don't write, so we can omit this one, so the formula becomes CaCl2. So this is the formula of calcium chloride. Okay, this was the first example in your book. Now coming up to the second example, दूसरा example देखते हैं। Second example is, फिर से वही करेंगे, we will write the name magnesium, then oxide। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से आया तो O। यहाँ पे आप सिर्फ सिंबल लिखेंगे, जो आपने सिंबल्स याद किए हैं उसके नीचे 2 या 1 कुछ यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ सिंबल लिखेंगे। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो लिख दी हमने ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने लिख दी मैग्नीशियम के नीचे। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपको वैलेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैलेंसी नहीं याद करेंगे तो आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। ओके, सो यू हैव टू लर्न द वैलेंसीज, अनलेस एंड अंटिल यू लर्न वैलेंसी यू विल नॉट बी एबल टू मेक द फॉर्मूला। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 लिख दी आपने ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम के नीचे लिख दी। अब जिसके नीचे जो लिखा है उसको उस फॉर्मूले के साथ लिख देंगे। तो Mg के नीचे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, O के नीचे भी 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखेंगे 2 और 2, चूँकि इसको सिंपलेस्ट रेशियो में रखना है हमने इस नंबर को, तो हमने यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 1 2 से कैंसिल हो गया ये, और हमारा फॉर्मूला बन गया MgO। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है दैट इज MgO। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन योर बुक इज कैल्शियम नाइट्राइड। तो कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, नाइट्राइड नाइट्रोजन से आया है तो N। अब कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, तो वो हमने नाइट्रोजन के नीचे डाल दी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, वो हमने कैल्शियम के नीचे डाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टडी करेंगे, जिसके नीचे जो वैलेंसी लिखी है उसके साथ लिख देंगे Ca3N2। इसमें देखेंगे कोई भी नंबर कैसे भी कट नहीं रहा है, 3 और 2, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं ला पाएंगे किसी भी तरीके से, तो हमारा फॉर्मूला यही बन जाएगा, दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन योर बुक इज जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोक्साइड इज OH। जिंक की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो जिसके नीचे जो है उसके साथ लिख दीजिए OH2 लिख दीजिए। ये 1 और 2 कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इस 1 को ओमिट कर देंगे हम, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Zn। और चूंकि यहाँ पे OH एक रेडिकल है तो उसको लिखने का तरीका ये, उसको हम डाल देंगे ब्रैकेट में, तो हमारा बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनियम कार्बोनेट इन योर बुक। तो अमोनियम, ये सब रेडिकल्स जो रेडिकल के टेबल हैं उसमें दिए हुए हैं आपके, अमोनियम कार्बोनेट, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा टेबल को। अमोनियम का सिंबल है NH4, ये जो 4 है ये इसका सिंबल ही है, चार्ज नहीं है, इसकी वैलेंसी 1 है, वो अलग है।
और कार्बोनेट इज CO3। ये जो CO3 है ये भी इसके नाम में है। इस 3 का इस 4 का उस वैलेंसी से नंबर, उस नंबर से कोई मतलब नहीं है जो नंबर अभी हम स्टडी कर रहे थे। अब अमोनियम की वैलेंसी 1 कार्बोनेट के नीचे, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 अमोनियम के नीचे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये जो है पूरा एक फॉर्मूला ही है, तो इसको एज इट इज उठा के रखेंगे NH4 और इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे 2 बाहर, बिकॉज दिस 2 विल बी आउटसाइड। एंड देन कार्बोनेट को भी ऐसे ही लिखेंगे 1। ठीक है, चूंकि 1 हम नहीं लिखते हैं तो इसको हम ओमिट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट भी इसीलिए हट जाएगा क्योंकि वो 1 हट गया इसके। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला अमोनियम कार्बोनेट का। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से देती हूँ आपको, उसको आप याद करेंगे, समझेंगे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ओके, सो एल्यूमिनियम सिंबल इज Al, लिख दिया। नाइट्राइड हैज कम फ्रॉम नाइट्रोजन, N लिख दिया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al3N3, 3 से 3 कैंसिल एंड द फॉर्मूला बिकम्स AlN, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ऐसे ही बहुत सारे आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जितने भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही बनता है ये बॉन्ड क्रिस क्रॉस, तो आप जितने भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल दिए गए हैं सबको देख के और उसका फार्मूला बनाइए। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अमोनिया गैस का फार्मूला है NH3, तो इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर तो लिखी हुई है, हाइड्रोजन की वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जो 3 है ये किसकी वैलेंसी है, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी है। सो यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द अदर एलिमेंट इफ इट इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन। So 1 atom of nitrogen combines with 3 atoms of hydrogen, ये स्पेलिंग गलत है, hence valency of nitrogen is 3। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी जो हाइड्रोजन पे लिखी हुई है, यानी 4, hence the valency of carbon is 4। Now let's see variable valency. Certain elements show more than one valency, that means they show variable वैलेंसी। अभी तक आपने जो वैलेंसी का चार्ट याद किया उसमें सबके ऊपर एक एक वैलेंसी लिखी थी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, 2 या 3 वैलेंसी हो जाती है उनकी। तो देखते हैं कि किस तरीके से वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी चेंज होती है। इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसी, अगर 2 वैलेंसी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे आयरन की, आयरन के पास 2 वैलेंसी आती हैं, एक 2 भी आयरन की वैलेंसी है और 3 भी आयरन की वैलेंसी है, तो आयरन 2 भी लिखते हैं और आयरन 3 भी लिखते हैं। तो उसमें एक रूल है कि जो इन दोनों में से जो छोटी वैलेंसी है यानी 2, उसके आगे तो लग जाएगा अस, OUS, ठीक है, सफिक्स अस, और जिनकी बड़ी वैलेंसी है उसके आगे लग जाएगा सफिक्स इक। तो ये रूल याद करना है कि इफ द एलिमेंट हैज 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसी देन सफिक्स अस इज यूज फॉर लोअर वैलेंसी, जो नंबर में छोटी होगी लोअर वैलेंसी में अस लग जाएगा, और इक इज यूज फॉर हायर वैलेंसी, बड़ी वैलेंसी में इक लग जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 में से बड़ी कौन है 3, 1 और 2 में से बड़ी कौन है 2, तो इक लग जाएगा, तो क्यूप्रिक, और छोटे में लग जाएगा क्यूपरस। ठीक है, तो आयरन की 2 वैलेंसी और कॉपर की भी 2 वैलेंसी। तो ये जो 2 मेटल्स हैं आयरन और कॉपर, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ऑल्सो शो वेरिएबल वैलेंसी। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस शो वैलेंसी ऑफ 3 and 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 5, तो 2 वैलेंसी शो करता है नाइट्रोजन। और उसी तरीके से फॉस्फोरस भी 3 और 5 शो करता है, और जबकि सल्फर जो है उसकी वैलेंसी है 2, 4 and 6, यानी सल्फर शोज 3 वैलेंसीज, दैट इज 2, 4 and 6। अब हम क्या करेंगे, वी विल लर्न दैट what is periodic table. First of all, let's understand that what is periodic table.
and before that we have to learn 20 elements, first 20 elements. जो हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनको उनके नाम then symbols and then valency you have to learn. This trick I have already told you how to learn. ह, ही, ली, बे, बी, सी, एन, ओ, एफ, मीना, मग, अल, सी, प, स, स्कल, अर, क, का, ऐसे करके याद कर लीजिए या और कोई निमोनिक बना लीजिए इसका। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन ही आना चाहिए, दूसरे पे हीलियम, देन थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हो गए। और अब इनकी वैलेंसी कैसे याद करेंगे, पहले आपने ये दोनों चार्ट लिख दिए, फिर आप याद रखिएगा 1 0, पहले 10 लिख दिया आपने, उसके बाद 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगा। देन 1 2 3 4, ओके 3, पहले 1 0 तो आपने लिख ही दिया, ये 1 0 आपका आ गया पहले। उसके बाद देखो 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, इस फॉर्मेट में आपकी वैलेंसी, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। It is noticed that the valency, that is combining capacity of an element, increases from 1 to 4 and then again decreases to 1. For some of the elements like helium, neon, argon, the combining capacity is 0 because they are inert. कैसे किसी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 0 भी होती है क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या होती है 0। और वो कौन होते हैं, वो इनर्ट गैसेज होती हैं हमारी, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जो हमने 20 एलिमेंट्स बनाए हैं इसको किस तरीके से हम एक पीरियोडिक टेबल में डालेंगे। तो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें लिखना क्या क्या है। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये क्या होती है और ये क्या होती है, इसको समझना है। सो व्हेन यू मूव डाउन, ये जो है इनको वर्टिकल कॉलम्स, इनको जो हम बोलते हैं ये वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर नोन एज ग्रुप्स, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप एंड 0 ग्रुप। तो ये तो हमारे ग्रुप हो गए। और जो इधर से ऐसे चलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई जो लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो फर्स्ट पीरियड ये रहा आपका। सो पीरियड क्या होगा, ये जो ऐसे चल रहे हैं इधर की तरफ। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ह और ही, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन सेकेंड पीरियड में ये देखिए यहाँ ये है सेकेंड पीरियड, देन दिस इज थर्ड पीरियड एंड देन दिस इज फोर्थ पीरियड। तो ये वाले ग्रुप्स और ये वाले पीरियड्स। चलिए सीखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। ओके, लेट्स सी हाउ वी विल मेक दिस पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट यू हैव टू राइट ग्रुप नंबर, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप नंबर आ गए जो आपने लिख लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे पीरियड नंबर, लिख देंगे आप, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। अब आप फिल करना शुरू करेंगे इसमें अपने 20 एलिमेंट्स जो आपने याद करें। तो पहली लाइन में फर्स्ट पीरियड में आप पहले फर्स्ट प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे लिख देंगे अपने दोनों एलिमेंट्स जो आपने याद किए हैं, ह, ही। देन उसके नीचे शुरू करेंगे ह, ही, ली, बे, बी, सी, एन, ओ, एफ, नी, ना, मग, अल, सी, पी, एस, सी, एल, अ, का and ka. So this is the way how you will write the first 20 elements in your periodic table. Okay, and now this is the first period containing 2 elements, hydrogen and helium. Second period contains lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Third period contains sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. एंड फोर्थ पीरियड कंटेन्स पोटेशियम एंड कैल्शियम। आपके सिलेबस में भी यही 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ऑल्दो पीरियोडिक टेबल में देयर आर 118 एलिमेंट्स टिल डेट, और भी डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन अभी 10th तक के सिलेबस में वी हैव ओनली दीज 20 एलिमेंट्स। ये 20 एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। अच्छा, और इसमें इसी टेबल में आप आराम से अपनी वैलेंसीज भी याद कर सकते हैं। अगर ये टेबल आपको बनाना आ गया तो आई विल शो यू हाउ यू कैन लर्न योर वैलेंसीज बाय राइटिंग हियर
you can see. So this is the first, तो इसकी वैलेंसी 1, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1, लिथियम की भी 1, सोडियम की भी 1 और पोटेशियम की भी 1, ठीक है. देन सेकेंड वालों की वैलेंसी 2, थर्ड वालों की वैलेंसी 3, फोर्थ वालों की वैलेंसी 4, यहाँ इनकी वैलेंसी 3, इनकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 1 और इनकी वैलेंसी 0. तो ये हो गए आपकी वैलेंसीज. आप इस तरह से भी वैलेंसीज ये चार्ट बना के आप लिख के और वैलेंसीज याद कर सकते हैं. फिर आपसे कोई कभी भी पूछ ले, सपोज मैं अगर आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ से आया सल्फर, तो आपको फ़ौरन याद करेंगे आप कि सल्फर जो है वो आपके 6th ग्रुप में है और उसकी जो वैलेंसी होती है 6th ग्रुप की वो है 2. तो सल्फर की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी. क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? तो 7th ग्रुप में है, उसकी वैलेंसी 1 होगी. सो दिस वे यू कैन टेल द वैलेंसी बाय मेकिंग दिस टेबल. ये टेबल आपको जल्दी से बनाना आना चाहिए फटाफट. एंड देन आफ्टर दैट यू कैन मेक आउट द वैलेंसीज ऑल्सो बाय राइटिंग दिस वे. According to IUPAC system, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. Now this is the organization which is looking after the naming and everything, periodic table and all. This organization is for chemistry. Any new element discovered and what will be the position, everything is looked after this organization. So you all know that group number is represented by the Roman numerals, that is this way, and periods are represented by 1 2 3 4, and you can also represent the group number also as 1 2 3 4 up to 18, and this you will study in higher classes, the details of periodic table. And this formula making I have already told you that how to make the formula. What is the definition of molecular formula? Molecular formula for compound is the symbolic representation. Keyword आपका आएगा symbolic representation of its one molecule. So actually when you are writing the formula of anything, suppose if I write water here, H2O, this H2O is of one molecule of water. So it shows the number of atoms of each element present in it. These atoms combine in whole numbers to form the molecule. तो ये हो गया आपका molecular formula की definition. Crisscross also you have learned how to do it, and this way now we will study about the significance of molecular formula. Molecular formula actually क्या है? Molecular formula is the simplest way to write, and plus it is using the short forms also. So what it is doing, it is saving time, space and energy, and it represents one molecule of the compound. So the number of each kind of atom present, that is the ratio in which atoms are present in one molecule. The mass of one molecule, एक molecule का mass भी आप निकाल सकते हैं, वो भी हम higher classes में सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं. देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2SO4. अब इसमें आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. और किस किस रेशियो में? हाइड्रोजन 2 के, सल्फर 1 के और ऑक्सीजन 4 के रेशियो में ये हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम इनके हाइड्रोजन के 2 एटम का मास, सल्फर के 1 एटम का मास और ऑक्सीजन के 4 एटम का मास ऐड कर दें तो हमें पूरे एक मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा. ओके, नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय राइटिंग अ नंबर ऑल्सो. अगर मैंने लिखा 2H2SO4, इसका मतलब हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. 5NaCl लिख दिया मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, और इन सब कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूले याद करने हैं. यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स.